Hello kids, welcome to your English class. I am your teacher Ananya and I am back with a new lesson of your class 6 English book. So today we are going to start with lesson number 13 and the title of the chapter is The Two Friends. यानी आज हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे. Children, you all have friends, सबके friends हैं, है ना? किसी के एक है, किसी के दो हैं और किसी किसी के तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. Who are our real friends? हमारे रियल फ्रेंड्स कौन है? एक्चुअली क्या सब हमारे दोस्त हैं? जो हमें ज़रूरत के वक्त मदद करें वही एक्चुअली हमारा दोस्त है. तो आज हम इसी थीम पर चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. Read this lesson and learn about the true friendship of Mojo and Rajal, who helped each other in their hardships. So, as I told you children, कि a true friend is the one who helps you when you really need that person, who is there with you to support you constantly. Alright, so today we are going to study a short story about two friends whose names are Mojo and Rajal, and how they support each other during problems or during the hardships that they face. So let's begin. Two boys were born on very same day in an African tribe. So we are going to study a story which is based in Africa. तो एक अफ्रीकन ट्राइब में, अफ्रीकन कम्युनिटी में दो बच्चों का जन्म हुआ एक ही दिन. ठीक है. And they grew up to be firm friends, and these two boys slowly and gradually became very good friends. Mojo was rich one, Rajal was poor, and out of these two friends, Mojo was a bit affluent and Rajal was on the poorer side. ठीक है. मोजो जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि रजल was not having so many riches. They looked so alike that nobody could identify the one from the other. And these two children almost looked similar. Means if somebody looked at them and both of them are standing, then it was very hard to differentiate between the two. दोनों जब एक साथ खड़े हो जाते थे तो एक दूसरे के बीच में अंतर कर पाना या फ़र्क कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. After 20 years, Mojo thought that he had been spending his youth in worthless works like grass cutting, hunting of hares, mice and rats. He had a desire to see something of the world outside. It was obvious that he should ask his best friend to go along with him. Now, after 20 years, that means जब ये 20 साल के हुए तो फाइनली मोजो को एक दिन लगा कि मैं जो अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ वो बहुत अच्छी नहीं है, मैं जैसे वेस्ट कर रहा हूँ, इसे मीनिंगफुल या पर्पसफुल बनाना चाहिए. कितनी सुंदर सुंदर जगह है, मुझे वो सारी जगह घूम के देख के आना चाहिए. सो ही थॉट कि वाई आई शुड गो अलोन, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपने दोस्त को साथ में लेके जाऊँगा. एंड हिज फ्रेंड वॉज रजल, तो उसने सोचा क्यों ना मैं रजल को भी अपने साथ ले चलूँ. व्हेन दे रीच द नेक्स्ट विलेज, Mojo saw a very beautiful girl, Viriana. He was so impressed by the beauty of Viriana that he immediately asked her to marry him. Now when Mojo and Rajal reached the next village while traveling, there they came across a girl who was very beautiful. बहुत खूबसूरत एक लड़की को उन्होंने देखा और लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था Viriana. ठीक है. Now Mojo instantly fell in love with that girl and he expressed his desire to get married. उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं वेरियाना से शादी करना चाहता हूँ और इमीडिएटली उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, उसको प्रपोज किया. Alright. Viriana said, "My father is the chief of the village and he wants that I should marry a man capable of doing superhuman things. He organizes many dangerous and unbearable tasks for my suitors, and to see such tasks I fear I shall grow old without ever being married." Now as you can say, they both are talking
So when Mojo expressed his desire to get married, immediately Viriana replied that my father is the chief of this particular village. कि मेरे जो पिताजी हैं वो इस गांव के मुखिया हैं, एंड वो मेरी शादी एक ऐसे नौजवान से करना चाहते हैं जो कि अजीब और स्ट्रॉन्ग हरकतें कर सकता हो, जो कि सुपर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, सुपर हीरो की तरह डिफरेंट डीड्स कर सकता हो। और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे जो पिताजी हैं वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे काम ऑर्गेनाइज करते हैं जिन टास्क्स को देख के मुझे खुद को भी डर लगता है कि कोई ये टास्क कैसे पूरा कर सकता है। वो जो भी मुझे शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं वो उसे कोई टास्क दे देते हैं, और उस टास्क को अगर ना कर पाए तो फिर क्या होगा, तो फिर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। तो विरियाना ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी किसी सुपर ह्यूमन से करने का फैसला किया हुआ है। जो भी मुझे प्रपोज करता है मेरे पिताजी उसको अलग अलग असाइनमेंट्स या अलग अलग टास्क दे देते हैं, और अगर वो टास्क को पूरा कर देता है तो मेरे पिताजी उसी के साथ मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन वो टास्क इतने ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक होते हैं, इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि कई बार तो मुझे लगता है कि मैं ही बूढ़ी हो जाऊंगी, कभी मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी। On hearing this, Mojo went to the chief and said, "Sir, I want to marry your daughter. Surely the most beautiful woman in the whole world. You can give me any task and it shall be done perfectly." तो जब मोजो को इस बात का पता चला उसने क्या कहा, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो गांव के मुखिया के पास गया, यानी विरियाना के फादर के पास। उनके पास जाके उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बेटी शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मुझे इनसे शादी करनी है। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं उस काम को पूरा करके ही दिखाऊंगा। I will succeed definitely because my love for your daughter is boundless. तो मोजो ने फर्दर ऐड किया कि whatever task you give, maybe it is very hard and very tough, but I assure you that I will succeed in that particular task because I love your daughter deeply and her love is the strength for me. All right. तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी टास्क पूरा करने के लिए तैयार हूँ। But Mojo became hopeless when the chief told him to spend 4 days and 4 nights in a hut without any food or water to sustain him. The chief also told him that if he did not succeed, he would be killed. So consumed with love was he that he accepted the conditions. Now what happened? चीफ ने क्या शर्त रखी, मोजो को क्या टास्क दिया, उन्होंने बोला वहाँ एक झोपड़ी है, एक हट है, तुम्हें 4 दिन उस झोपड़ी में बिताना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि उस झोपड़ी में ना तो कोई खाना है ना ही तुम्हारी मदद के लिए कोई और सामान है। अगर तुमने टास्क पूरा कर लिया तो तुम्हें जो है मेरी बेटी से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी, यू कैन मैरी माई डॉटर। बट इन केस यू आर अनेबल टू कंप्लीट द टास्क देन यू वुड बी किल्ड। अगर तुमने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें सज़ा दे दी जाएगी और तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। अब मोजो उस वक्त इतना ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ था, उसे तो एक ही धुन सवार थी कि किस तरह से विरियाना से शादी हो जाए। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और उसने हाँ कर दी। They put him in a prison like hut that had no windows. And in the long and narrow doorway, a guard slept on the mat like a human watchdog. Mojo put his bed mat against the wall and faced the street, and so the first long day crawled slowly from sunrise to sunset. तो जब मोजो ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोगों ने मोजो को एक हट में डाल दिया। वो हट बिल्कुल एक जेल के बराबर ही था। जैसे जेल में कोई सुविधा नहीं होती, कोई पैसेज नहीं होता, हट भी बिल्कुल वैसा था। और जस्ट हट के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ था जो कि मोजो पे नज़र रख सके, ठीक है।
अब मोजो ने पहला दिन तो किसी तरह बिता दिया। उसने क्या किया, अपना जो बेड मैट था उसको दीवार की तरफ लगाया और खिड़की के बाहर देख देख के किसी तरह दिन गुजार दिया। When the night was dark and the villagers asleep, Mojo's pre-arranged plan came into operation. After wetting the wall, Rojal made a small hole in it with his knife, and through this hole he quietly pushed a hollow reed, dipping its end into the container of water. On the other end, Mojo was able to drink the sweet, life-giving liquid without even rising from his mat. And when the container was drained, Rojal removed the reed, plastered the wall with mud to hide the hole, and quietly ran off into the darkness. Now, after the sunset, it was getting dark. Everybody started sleeping, है ना। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी सब लोग सोने लगे, सब सो गए। मोजो भी अपने बेड पे, बेड मैट जो बिछाया हुआ था उस पे लेट गया। अब हट की दूसरी तरफ यानी दीवार की दूसरी तरफ रात के अंधेरे में धीरे धीरे मोजो का बेस्ट फ्रेंड यानी रोजल आया। उसने मिट्टी को गीला करते हुए उसमें एक छोटा सा सुरंग जैसा छेद कर दिया और उस छेद में से एक पाइप जो है अंदर धकेल दिया। ये पाइप कहाँ पहुँचा? स्ट्रॉ जैसा एक पतला सा पाइप पहुँचा मोजो तक। अब मोजो ने उस पाइप के थ्रू पानी पीना शुरू किया। रोजल हट के बाहर से पानी का सप्लाई दे रहा था और मोजो धीरे धीरे पी रहा था। और क्योंकि मोजो लेटा हुआ था और छेद जो है मतलब होल जो है वॉल के बहुत नीचे किया गया था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि वो आराम से पानी पी रहा था। ठीक है, जब ये पूरा टास्क फिनिश हो गया, पानी पी लिया मोजो ने, तब रोजल ने क्या किया? रोजल ने जल्दी से स्ट्रॉ वापस खींच लिया, वापस से दीवार को प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि वहाँ कोई छेद भी किया गया था, और अंधेरे में वहाँ से चला गया। Every night he did this while the guard became more and more suspicious, for no previous man had lasted more than 2 days before crying for food and water. On the 4th night he commanded Mojo to sleep against the other wall of the hut while he lay down on his bed mat. For the first time in his life Mojo felt fear. अब जो गार्ड था वो तो उस पर नज़र रखे हुए था। एक के बाद दिन बीतने लगे और 3 दिन ऐसे ही चले गए। अब जो गार्ड है वो भी थोड़ा चौंक गया कि पहले जितने भी लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो तो 2 ही दिन में थक जाते थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे कि खाना लाओ, पानी लाओ। ये कैसा आदमी है? इसको भूख प्यास नहीं लगती? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये रो रहा है ना इसको टेंशन में देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से रह रहा है। उसको शक हो गया। तो गार्ड ने क्या बोला कि जो 4th नाइट था यानी जो लास्ट नाइट है, उस दिन गार्ड ने बोला आज आप उस दीवार की तरफ नहीं, आज आप दूसरी दीवार की तरफ सो। ठीक है, अब मोजो को टेंशन हो गई। मोजो को लगा आज रात को तो वो पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज़ यूजुअल रोजल आएगा, छेद के थ्रू स्ट्रॉ पास करेगा, उसे तो पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, तो फिर गार्ड उन्हें पकड़ लेंगे और जो है मोजो को मौत की सज़ा सुना दी जाएगी एज अ पनिशमेंट। The night fell and the guard heard a soft scraping noise, and after a few minutes a hollow reed poked through and he drank the water of Rojal's container. He shouted, "So that's how you have sustained yourself these past 4 days, by cheating? The chief will hear this in the morning. My own container filled with water will be the evidence, and that will be the end of your life." Rojal heard this as he withdrew the reed with trembling fingers. Stealing back into the darkness, he wondered how could he help his friend who was to him as a brother. तो as usual गार्ड ने जैसा तय किया वैसा ही हुआ। आज मोजो को गार्ड ने दूसरी तरफ ही लेटने के लिए कहा। मोजो ना भी नहीं कर पाया क्योंकि गार्ड वॉच रख रहा था, और गार्ड जो है उसकी जगह कहाँ लेट गया? मोजो की जगह, मोजो की प्लेस पे लेट गया। एज़ यूजुअल रोजल को तो इस चेंज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। रात बढ़ी, रोजल आया,
कंटेनर पानी का रखा और स्ट्रॉ को छेद के थ्रू अंदर कर दिया। अब जैसे ही गार्ड को ये सारा सीन दिखा, गार्ड ने क्या किया, गार्ड ने मोजो बन के सारा पानी पी लिया और जब पानी का कंटेनर बिल्कुल खाली हो गया तब उसने चिल्ला के बोला, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि कैसे तुम पिछले 3 दिन से सरवाइव कर रहे हो। मैं आज ही चीफ को सारी बात बता दूंगा और फिर तुम्हें सज़ा सुनाई जाएगी। तुम चीटिंग से जीतना चाहते हो, अब तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अब बाहर रोजल ने ये सारी बातें सुनी, वो डर गया। उसने सोचा कि अरे मेरा दोस्त तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गया है, मैं क्या करूं, वो तो मेरे भाई जैसा है, मैं क्या ऐसा करूं, कौन सी युक्ति लगाऊं कि मैं किसी तरह मोजो को बचा सकूं। Suddenly a voice came squeaking out of the darkness. Young man, you are looking worried. May I help you? Rojal looked down and he found a rat. The rat said, I am Indral. Tell me your problem and I will try to find a solution. अब रोजल जो है जंगल में भटक ही रहा था, सोचता हुआ कि क्या करूं, किस तरीके से मोजो की मदद करूं, उसे उसकी जान बचाऊं। और तभी क्या हुआ, अचानक कहीं से आवाज़ आई। जब रोजल ने इधर उधर देखा तो क्या देखा कि नीचे एक छोटा सा चूहा उसकी तरफ बातें कर रहा है, उसके साथ उसकी तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि यंग मैन, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यू सीम टू बी इन स्ट्रेस, अपनी परेशानी मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू आउट, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैं कौन हूँ, मेरा नाम इंद्राल है। When Rojal told his problem, Indral said, You sleep well tonight, your friend will be all right. Indral reached the hut and gone a hole through the wall, and while the guard went on sleeping, a horrible grin of triumph increasing his face, he pushed the container through the hole where his friends, the white hands, stood waiting in rows. He finished eating the container, not even the smallest chip remained. So finally what happened? अब जो रैट था इंद्राल, उसने बोला, रोजल तुम जाकर सो जाओ आराम से, तुम्हारे फ्रेंड को कुछ नहीं होगा कल, मैं निश्चित करूँगा कि वो किसी तरह से ना फंस पाए, ठीक है। अब रोजल वहाँ से चला गया। इंद्राल चुपके से गया हट के पास, उसने एक छेद बनाया हट में और धीरे धीरे हट के अंदर गया और फिर वो जो कंटेनर थे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनको अपने एंट फ्रेंड्स, जो वाइट एंट्स थे, उनको खाने के लिए दे दिया। और उन सब ने मिलके रात भर में वो पूरा कंटेनर धीरे धीरे स्मॉल बिट्स में तोड़ तोड़ के खा लिया और कंटेनर का एक भी कोना नहीं छोड़ा। The next morning the guard found that he had no container, and as nobody would believe him, Mojo was able to marry Viriana and take her back to his village with him. अब फाइनली गार्ड को सुबह वो कंटेनर नहीं मिला एज अ प्रूफ, जो वो दिखाता चीफ को कि इस कंटेनर में से ये पानी पी रहा था। वो किसी को बोलता तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, तो क्या करता, इसीलिए वो चुप रहा। और एज यूजुअल सबको लगा कि मोजो जो है चैलेंज जीत गया है और इसीलिए उसकी शादी किसके साथ कर दी गई, विरियाना के साथ। शादी के बाद मोजो विरियाना को लेके अपने विलेज वापस आ गया। There his father gave Mojo and Rojal 2 magic knives, so alike that nobody could possibly tell the difference between them. One day you will need the magic of the knives, he said to them. तो वहाँ जब पहुँचे तो मोजो के फादर ने रोजल और मोजो को 2 मैजिकल नाइफ्स दी और बोला कि एक दिन तुम्हें इन मैजिकल नाइफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। Now, after some months, Rojal announced that he had a desire to travel to a far-away village and find a wife for himself. अब कुछ महीने बड़े अच्छे से सुख शांति से बीत गए। एक दिन रोजल ने कहा कि मुझे भी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मैं दूर घूमना चाहता हूँ और अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ ढूंढ के लाना चाहता हूँ। But first he planted a silk cotton tree and said that he would leave when it was high as his knee. तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने एक सिल्क कॉटन ट्री को बोया और फिर उसने बोला कि जब ये मेरे नी लेंथ तक आ जाएगा तब मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा। When the tree had grown and he was about to set off for his journey, he said to Mojo,
See how it flowers. This cotton seed tree of mine that I planted in a hole cut out by magic knife given me by your father-in-law. अब फाइनली क्या हुआ? फाइनली वो ट्री धीरे धीरे, जो ट्री बोया गया था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो उसने क्या बोला? उसने कहा ये जो कॉटन सीड ट्री मैंने लगाया था, देखो अब ये बड़ा होने लगा है, और ये मैंने उस मैजिक नाइफ के थ्रू ही लगाया था जो तुम्हारे फादर इन लॉ ने मुझे दिया था। ऑलराइट, if these leaves become withered and dry, it will be a sign that I am either dead or in the most desperate trouble. Goodbye and may your happiness grow during my absence. तो रोजल ने गुड बाय बोलते हुए मुझो को बोला कि हमेशा इस पेड़ का ध्यान रखना। अगर कभी तुम ऐसा देखो कि इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो सूख गए हैं या धीरे धीरे मुरझा रहे हैं, तो फिर ये मान लेना कि मेरी लाइफ भी जो है ख़त्म हो गई है, यानी या तो मैं मर चुका हूँ या फिर मैं किसी बहुत ही बड़े मुसीबत में हूँ। ऑलराइट, मैं यही आशा करता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम आराम से रहो, खुशी से रहो, अपना ध्यान रखना, और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगा। After a few days, he entered a village. Approaching, he heard a vast sad sound coming from the throats of hundreds of people. And just ahead of him, he could see a lonely girl sitting in the dry river bed. She was very beautiful and he was in love with her before he even came close to her to ask what was the cause of the misery in the village. Now, what happened? So, Rojal wanted to travel different places to find a wife. He went to different villages. अलग अलग गाँव में घूमा और फाइनली एक गाँव में जब वो पहुँचा कुछ दिनों बाद, वहाँ सब लोग जो है रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब उसने क्या देखा कि जब सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक कोने में एक लड़की जो है नदी किनारे बैठी हुई है, और वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि रोजल एकाएक उसके प्रेम में पड़ गया। उसे लगा कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है, मैं इसी से शादी करूँगा और क्यों ना मैं इसी को अपनी पत्नी बना लूँ। लेकिन परिस्थिति गंभीर थी, सब लोग रो रहे थे, माहौल ऐसा था नहीं। तो उसने फाइनली जाकर पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी है, वाई आर यू क्राइंग? ठीक है। द रिवर गॉड इज क्रूएल एंड डिमांडिंग, सो द रिवर फ्लोज ओनली व्हेन अ यंग गर्ल इज सैक्रिफाइस्ड। टुडे इज माई टर्न, आई रेवती द डॉटर ऑफ द चीफ, so go away and leave me before the river god comes at the sunset to devour me. अब उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम है रेवती और मैं इस गांव के मुखिया की बेटी हूँ। ये जो रिवर गॉड है ये बहुत ज़्यादा क्या है, क्रूएल है, बहुत ज़्यादा अत्याचारी है। ये तभी फ्लो करता है जब कोई यंग गर्ल अपना सैक्रिफाइस कर देती है, और आज टर्न के हिसाब से मेरी टर्न है, यानी आज मुझे अपने आप को रिवर को दान में देना है। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, जब सनसेट होगा तब रिवर गॉड आएंगे और मुझे ले जाएंगे। बट रोजल रिफ्यूज टू गो, फॉर वॉट मैन विल लीव द वुमन ही लव्स व्हेन शी इज इन डेंजर। ऑल डे ही सैट विद हर टेलिंग हर ऑफ हिज लव फॉर हर। तो रोजल ने सोचा कि वो आदमी ही क्या जो किसी को प्यार करे और उसको मुसीबत में छोड़ दे। वो दिन भर वहीं बैठा रहा रेवती के साथ और उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाता रहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम चिंता मत करो, हम किसी ना किसी तरह यहाँ से बच निकलेंगे। As the sun sank, there was a rumbling in the sand near them, and out of the earth came the biggest dragon Rojal had ever seen. It was as thick as a mighty banyan tree, and Rojal was filled with fear, but he dashed forward and with a sweep of his magic knife, he cut off the monster's head. Water came gushing out of the huge headless dragon, and even as it tried to slither back into its hole, Rojal was cutting it into pieces. Out of each piece the water flooded unceasingly. So what happened? जैसे ही सनसेट हुआ, अचानक धरती के नीचे से आवाज़ होने लगी और एकदम से क्या हुआ, धरती में क्रैक हुआ और उसमें से एक ड्रैगन, बड़ा सा डेंजरस सा ड्रैगन निकला, यानी वो जो रिवर गॉड था वो निकला। ठीक है, अब वो जो रिवर गॉड था ड्रैगन की शेप में, वो काफ़ी भयानक था और रोजल ने इससे पहले ऐसा ड्रैगन कभी नहीं देखा था।
रोजल ने बिल्कुल मौका नहीं गंवाया। इससे पहले कि ड्रैगन कुछ करे, रोजल ने अपनी मैजिकल नाइफ उठाई और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही रोजल ने ऐसा किया, वहाँ से जो उसका शोल्डर था, धड़ था, उसमें से पानी ओवरफ्लो होने लगा। अब जो रिवर गॉड यानी ड्रैगन था, उसने कोशिश की कि वो अपनी बाकी बॉडी के साथ वापस धरती के अंदर चला जाए, लेकिन रोजल ने वो मौका ही नहीं दिया। वो फटाफट उसके अलग अलग पीसेस करता चला गया, और जितने पीसेस करता उतना ही पानी ओवरफ्लो करता। Laughing with joy and relief, Rojal and Revati ran out of the river bed as it filled with the sweet life-giving water until the river was flowing through the village and the thirsty villagers were drinking greedily. Now finally what happened? As the dragon's life was ended, the entire river bed started overflowing with water. वापस से सब कुछ नॉर्मल हो गया और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। तो जो विलेजर्स थे, जो इतने दिनों से प्यासे थे, वो लोग जाकर दौड़ के पानी पीने लगे और अपनी प्यास बुझाने लगे। Revati and Rojal married immediately and they built their hut some distance from the village. Many grateful villagers came to pass the time of day with them. तो फाइनली रोजल के साथ रेवती की शादी हो गई और रोजल ने वहीं पास ही गांव के बाहर अपना एक हट बना लिया। जो भी विलेजर्स रेवती और रोजल को जानते, वो लोग उनसे मिलने आते, उनके साथ वक्त बिताते और इस तरह से उनके दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। A few weeks after the marriage, there was an astonishing happening. Every piece of meat in the village, chops, steaks, even sausage sizzling in the pan, suddenly jumped up and ran towards the distant hill. Rojal did not believe his eyes. Never before had he seen meat actually running. Now what happened? शादी हो गई, सब अच्छे से सेटल हो गया, वो लोग रहने लगे। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब सी अद्भुत सी घटना घटी। खाना, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं यानी फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो वो डिफरेंट मीट आइटम्स खाते हैं, जैसे मीट, सॉसेजेस, ऑलराइट। सो व्हाट हैपेंड, एक दिन रोजल ने क्या देखा कि गांव भर में जितने भी जहाँ मीट या फ्लैश था या सॉसेजेस थे, जब वो कुकिंग कर रहे थे, वो सब पैन से कूद के एक हिल की तरफ भागने लगे। नाउ दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज। ऐसा नज़ारा तो रोजल ने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं, सपने में भी नहीं देखा कि ऐसे मीट जो है रन कर रहा है। This happens quite often, Revati explained to him. The meat runs to that distant hill. It swallows the meat and will do the same to anybody who goes near the mighty rock at its foot. तो रेवती ने जब रोजल को इतना चौंका हुआ देखा तो उसने बोला कि ये तो यहाँ की आम बात है, ये कई बार होता है, जब भी उस हिल को भूख लगती है तब वो कुछ मैजिक करता है और ये सारे मीट क्या है, निकल के भागते हैं हिल की तरफ और वो इसको खा लेता है। सिर्फ मीट ही नहीं, अगर कोई इंसान भी उस रॉक की तरफ जाता है, हिल का जो रॉक है उस चट्टान की तरफ जाएगा तो वो उसे भी खा लेगा। A few days later, Rojal went hunting with 10 young men from the village. Seeing an antelope, they gave chase and in their excitement kept running even when the animal passed the dreadful rock, which opened its stony mouth wide and swallowed them all. Now what happened? एक दिन 10-15 दिन की बात है, उसके बाद रोजल कुछ 10 लोगों को लेके शिकार खेलने गया जंगलों में। अब शिकार खेलते खेलते एक एंटीलोप को देखा उन्होंने और उसके पीछे दौड़ने लगे उसका शिकार करने के लिए। वो शिकार करने में इतने ज़्यादा खो गए कि वो ये भूल गए कि शिकार धीरे धीरे उस हिल के पास जा रहा है और जैसे ही वो शिकार यानी वो एंटीलोप उस हिल के पास पहुंचा, उसने उसको अपने अंदर निगल लिया। और ना सिर्फ उसको निगला, क्योंकि ये लोग उसका पीछा कर रहे थे, वो भी हिल के पास पहुंच गए, तो इन सबको भी हिल ने क्या किया, अपने अंदर ले लिया। At that very moment, many miles away, Mojo happened to be standing at the cotton seed tree planted by Rojal. Even as he looked, the leaves withered and dried up, and he knew that his friend was either dead or in great danger. He set out immediately. 3 days later, he reached the hut where Revati and Rojal lived. He looked so much like Rojal that Revati thought her husband had returned from the hunt. अब क्या हुआ, इत्तेफाक से उस टाइम पे
मोजो जो कि रोजल का फ्रेंड था वो उस कॉटन सीड प्लांट के पास ही खड़ा था। और याद है मोजो को क्या बोला गया था? मोजो को ये बोला था रोजल ने कि अगर कभी मैं मुसीबत में हूँ या मैं मर जाऊँ तो इस पेड़ के सारे पत्ते जो है मुरझा जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। हिल ने ले लिया था ना अपने अंदर रोजल को, तो इमीडिएटली जो कॉटन सीड प्लांट के पत्ते हैं एकदम से मुरझा गए और झड़ने शुरू हो गए। ये देखते ही मोजो को विश्वास हो गया कि इसका मतलब रोजल जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या तो वो मर चुका है या किसी मुसीबत में है। उसने वहीं अपना सारा काम स्टॉप किया और रोजल की खोज में निकल पड़ा। अब वो रोजल को ढूंढते ढूंढते 3 दिन बाद रेवती के घर पहुंचा। अब क्योंकि मोजो और रोजल बिल्कुल एक जैसे देखने में थे तो रेवती को लगा कि शायद रोजल वापस आया है। रेवती तो मोजो को जानती नहीं थी, उसे यही लगा कि उसके हस्बैंड वापस आ गए हैं शिकार खेलकर। 3 days you have been gone, she cried. You must have hunted many animals for the villagers. He replied, pretending to be Rojal. It was a splendid hunt and we were very successful. But I must go away again immediately, for a great herd of buffalo is moving across the plain and we need all the meat we can get before the winter comes. So, इससे पहले रेवती ने कभी मोजो को देखा नहीं था। उसने सोचा कि ये तो रोजल है, तो वो रोने लगी। उसने कहा 3 दिन हो गए आप चले गए यहाँ से, मैं कितनी परेशान हो गई थी, पर चलिए अब आप आ गए हैं तो मैं निश्चिंत हूँ। मैं यकीन करती हूँ कि आप तो बहुत सारा मीट लेके आए होंगे और गांव वालों को अब खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। अब मोजो ने अपना एक्चुअल परिचय नहीं दिया। ही डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, ही प्रिटेंडेड टू बी रोजल। उसने रोजल बन के ही रेवती से बात की और बोला नहीं, बहुत अच्छा शिकार किया मैंने, लेकिन मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बहुत ही अच्छा बफेलो का हर्ड आ रहा है और हमें उनका शिकार करना है ताकि सर्दियों में हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है? And he ran to the village and spoke with the chief, who said sadly to him, "Of course we haven't told Revati what happened, but it is believed that they were swallowed up by the rock on the sacred hill." So finally क्या हुआ? वो गया दौड़ के मुखिया के पास, यानी रेवती के फादर के पास। तब रेवती के फादर ने बताया कि हाँ, हमें पता है कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, वो हिल रॉक ने सबको अंदर निगल लिया है, लेकिन हमने रेवती को नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। सो ही नाउ थॉट हाउ टू रेस्क्यू रोजल। अब वो सोचने लगा कि रोजल को किस तरह से रेस्क्यू किया जा सके। रोजल इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, सेड मोजो, आई मस्ट रेस्क्यू हिम। लेट सम यंग मैन गाइड मी टू दिस abominable rock and I shall see what I can do. They tried to discourage him, but he was persistent, and 4 young hunters led him to the rock. There it is, they said. We admire your bravery, but we ourselves are too afraid to go any farther. So पहले तो जब पूरी घटना सुनी, मोजो ने तय कर लिया कि वो अपने फ्रेंड को किसी भी तरह से वापस लेके आएगा। पहले तो सब लोग उसको डिस्करेज करने लगे कि नहीं, हम रोजल को तो खो ही चुके हैं, आप मत अपनी जान गंवाओ, उन्हें वापस लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मोजो ने बोला कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से अपने दोस्त को वापस लेके ही आऊँगा, आई कैन नॉट लेट द थिंग हैपन लाइक दिस, आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, मुझे किसी भी तरह आप लोग उस हिल के पास लेके जाइए। तो फाइनली 4 हंटर्स ने, 4 जो शिकारी थे, 4 हंटर्स मोजो को लेके उस रॉक तक गए और फिर उन्होंने बोला कि वो उधर रॉक है, लेकिन हम इससे आगे जाने से डर रहे हैं। मोजो वेंट नियर द रॉक एंड इमीडिएटली ही स्टैब्ड इट विद हिज मैजिक नाइफ एंड द हंटर्स चीयर्ड एज द रॉक ब्रोक इनटू 2 halves. The 10 lost hunters and Rojal marched out singing, laughing and happy to be back with their friends in the sunlight again. Now finally क्या हुआ? मोजो ने बिना कोई समय खराब किए, बिना किसी समय को गवाए, उसने अपनी मैजिकल नाइफ निकाली और एकदम से हिल को 2 हिस्सों में कट कर दिया। और बाकी जो विलेजर्स और शिकारी थे वो लोग खुश हो गए, क्योंकि क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही मोजो ने नाइफ चलाई, जो रॉक था वो 2 हिस्सों में बट गया और उसमें से
रोजल और बाकी जो 10 लोग थे जिनको निकल लिया था रॉक ने, वो बाहर आ गए। Which one is my husband? cried Revati as the two young men looking exactly alike stood before her. अब सब लोग जब घर लौटे तो रेवती कंफ्यूज्ड कि आप दोनों में से मेरे पति कौन हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे। Rojal said, I am your husband and this is my dear friend Mojo who saved us all. And he told her of their friendship and adventures together and how Mojo had come to help him when the cotton seed tree's leaves withered and dried up. तो फाइनली रोजल ने रेवती को कन्फ्यूजन दूर किया और उसे बताया कि मैं तुम्हारा पति रोजल हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोजो है और हम बचपन से ही हम शक्ल हैं और हमने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं। एंड देन फाइनली ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट द मैजिकल नाइफ एंड द कॉटन सीड प्लांट। दे वेंट बैक होम विद मोजो, बिल्ट अ हाउस नियर हिज, and the two young men and Viryana and Revati remained dear friends for the rest their long lives. So what happened finally after this incident? Revati, Rojal and Mojo went back to their own village where Viryana was waiting for them. पहले तो सिर्फ रोजल और मोजो दोस्त थे, अब वो सभी आसपास हट बना के रहने लगे और विरयाना और रेवती भी दोस्त बन गए और ये चारों बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दे फोर टुगेदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो है ना एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग स्टोरी, कितनी सारी मैजिकल बातें हैं, कितनी सारे एडवेंचर्स है, मैजिकल नाइफ, कॉटन सीड प्लांट, ड्रैगन इज ऑल्सो देयर, देन वी हैव अ स्टोन rock that eats up people. So many adventurous things, imaginative and adventurous things. All right children, now it's time to do the exercises. So let's start. First of all, we have take the correct options. Okay, so first question is, Mojo saw a very beautiful flower, child, cub or girl? So girl is the correct answer. Clear? Second, the chief told him that if he did not succeed, he would be killed. अगर वो चैलेंज नहीं जीत पाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। For the first time in his life, Mojo felt fear. पहली बार जिंदगी में मोजो को डर लगा। The dragon was as thick as the mighty banyan tree, rose plant, neem tree or stone, so banyan tree. Okay. Fifth, Revati was the wife of Mojo, Rojal, chief, none of these. So Revati was the wife of Rojal, क्योंकि मोजो की वाइफ का नाम तो विरयाना था, right? Now let's do fill in the blanks. First one, they looked so alike that nobody could make out a difference between the two. Nobody could differentiate between them. They put him in a dash-like hut and had no windows. They put him in a prison-like hut that had no windows. Clear? Third one, Mojo was able to marry. किससे शादी की थी? विरयाना. Mojo was able to marry Viryana. Fourth sentence says, for the first time in his life, Dash felt fear. Mojo felt fear. Rojal is my dearest friend. Which one is my husband? ये question किसने पूछा था? ये पूछा था रेवती ने. So which one is my husband? Okay. So we are finally done with tick the correct options and fill in the blanks. Now let's move further. Next we have take the true statements and cross out the false statements. So let's get started. First one, Mojo and Rojal were born on the same day. Yes, it is true, they were born on the same day. Rojal married Viryana. No, this is wrong. Rojal had married Revati and Mojo had married Viryana. Third one, the dragon was killed by Rojal. Yes, this is true. Fourth one, Mojo married Revati. No, this is false. Fifth one, Mojo saved Rojal and his 10 companions. This is true. Alright.
Now we have matched the following. We need to complete these sentences. Certain phrases, incomplete phrases have been given under column A and some have been given under column B. We need to match them accordingly. So let's get started. The meat runs. The meat runs to that distant hills. I am your husband and this is my dear friend. I am your husband and this is my dear friend. They looked so alike that nobody could identify the one from the other. Mojo had a desire to see something of the world outside. Rojal looked down and found a rat. Remember about Indral who had helped Rojal and Mojo? Okay. Now let's proceed further. We have question and answers. So we would be discussing these questions one by one. And you can note down the key points and then later on complete these answers in your notebook. So first question, who were Mojo and Rojal? Mojo and Rojal were best friends. They looked so much alike that it was hard for the people to differentiate between two of them. Second, what condition was put by Viryana's father to Mojo for marrying her daughter? Viryana's father put up a challenging task for Mojo. He said that Mojo has to spend 4 nights inside a hut without any food or any other thing. Third question, how did Mojo succeed in his effort? Mojo succeeded in his effort with the help of his best friend Rojal. Rojal every night made a small hole in the wall of the hut and through that hole he used to pass a straw. Mojo used to drink the water through the straw and later on Rojal would again plaster the wall and go away. Fourth one, whom did Rojal marry with? Rojal was married with Revati. Fifth, what did Mojo do with his magic knife? Mojo, using his magic knife, cut the rock into 2 parts. Sixth one, how did Mojo know that Rojal was in danger or had died? Mojo came to know about Rojal's danger when he saw that the leaves of the cotton seed plant had dried and withered. It was a plant which was planted by Rojal with his magical knife. Rojal had told him that in case sometime I am in danger or if I die, then the leaves of this particular plant will start withering. Okay. So in this way Mojo came to know that Rojal was in danger. So children, with this we are done with all the exercises. I hope you have understood the chapter good and also you have understood the important lesson conveyed by this chapter. The lesson wants to teach us that we should always help our friend whenever he or she needs us. Okay? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हमारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए. So with this we are done with today's session. I will meet you again with a new chapter, a new topic where we will know some interesting story. So stay tuned for a new video. Bye bye and take care.